केड़ा बोलो कि मेरा मुंडा ही खा गया है, मेरा जिंदगी का सहारा ही खा गया है। लाहौर का तालिब इल्म जो कि पुर्तगाल के शहर में कैंसर स्टडीज का जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट करने गया था, लेकिन पुर्तगाल के शहर प्रोतो में उसके साथ रॉबरी होती है जिसके नतीजे में उसका मर्डर कर दिया जाता है। बहनों ने इस तरह पाला जिस तरह फूल को हिफाजत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। एक खबर जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। पाकिस्तानी लाहौर का तालिब इल्म जो कि पुर्तगाल के शहर प्रोतो में उसके साथ रॉबरी होती है जिसके नतीजे में उसका मर्डर कर दिया जाता है। लैपटॉप, मोबाइल और जो करेंसी उसके पास पुर्तगाल की थी वो उससे छीनी जाती है। उनके घर के बाहर मौजूद हैं। मालूम हुआ है कि 5 बहनों का इकलौता भाई और जो दूसरा भाई है वो अब नॉर्मल है। तो जाहिर बात है ज़रिया मुआश यही नौजवान एंथनी शौकत था। उनकी जो डेड बॉडी है वो अभी तक सफारत खाने के ज़रिए कोई राब्ता हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी डिटेल है इनसे आके लेते हैं। तो आ जाइए मेरे साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप सर बताइएगा कब पता चला अपने बेटे का, उनकी खबर कब मिली आप? 6 दिन हो गए ने खबर सानू मिली है कि ਤੁਹਾਡਾ लड़का ਜਿਹੜਾ ना ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ने गोली मार के कि उस टाइम महसूस होया एक ही बेटा है ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਦਵਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਨੂੰ, 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਮੁਸਲਮ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ? ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਰਮਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਤਲਾ ਪੁੱਛਣ ਨਾ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। FC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ 14 ਕੀਤੀਆਂ। 14 ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਉਤਲਾ ਗਿਰਵੀ 20 ਲੱਖ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ 7 ਗੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਵੱਡੇ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ? ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਸਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 30,000 ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 30,000 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹੀ ਆਮਦਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਂਥਨੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ।
ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੈ ਆਈਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ सहारा ही खा गया है। अभी तक सफारत खाने की तरफ से कोई इस तरह का मुस्बत रवैया नहीं इख्तियार किया गया या उसकी डेड बॉडी के बारे में कोई आगाही नहीं दी गई कि कब मिलेगी, कब उसका आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। एंथनी शौकत की बड़ी बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आखिरी बार कब मुलाकात हुई और क्या बात हुई? उन्होंने जब मुझसे बात की तो पहले तो हम कॉल पे थे। मैंने कहा एंथनी मेरा दिल कर रहा है कि आप ऑनलाइन मुझ पर बात करो मेरे साथ। तो फेस टू फेस हम बात कर रहे थे तो कह रहा था बाजी मैं पुर्तगाल आया हूँ तो अपना यूट्यूब चैनल को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, क्योंकि स्टडी वीज़े पे वो उसका फोकस था। कोई कमाई वगैरह भी आप लोगों को भेजते थे वो? हाँ जी, मेरे बड़े भाई हैं, उनको थोड़ा सा ज़हन का मसला है। उनके ये 2 बेटे और 1 बेटी है और उनकी बीवी और बाप का उसी पे वही भेजते थे और घर का खर्चा चल, मुआशी तौर पे वही इनको सपोर्ट कर रहे थे। घर का वही चलाते थे। ऐसी खबर मिलना अपने भाई के बारे में सोचा था? मैं तो पागल हो गई थी और मैं सुबह उठ के पहले उसे मैसेज भेजती थी व्हाट्सएप पे, कभी ना कभी मेरा भाई मेरे मैसेज सुनेगा। सुबह 5 बजे उठ के मैंने कहा एंथनी आप मेरा मैसेज देखना और मुझे रिप्लाई करना। क्यों नहीं कर रहे रिप्लाई? 5 बहनें और 2 भाई हैं और ये सबसे छोटा था एंथनी, सबसे प्यारा होता है छोटा। और इसको बहनों ने इस तरह पाला है जिस तरह फूल को हिफाजत रखते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहना। वापिस आना चाहते थे? हाँ जी, वो कहते थे मैं वापस आऊँ और यहाँ पे अपनी करवा के गए हैं रजिस्टर। ये कंपनी बहुत कम पाकिस्तानी यहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक मेरा भाई पहुँचा था। एंथनी शौकत के कज़न मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी डिटेल में बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि उनकी स्टडीज़ के थोड़े से हवाले से और फ्यूचर क्या प्लानिंग्स थी, खबर कब मिली, क्या मामलात बने सर? परेशान हो गए हैं सारे घर वाले। मेरी बड़ी मामी है वो भी परेशान होगी, फिर उन्होंने मुझे भी कॉल की, छोटी मम्मी ने भी मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे ना ये मामला हो गया, तो आप लाहौर आओ। मैं गुजरांवाला, मैं इनकी बड़ी बहन का बेटा हूँ, तो मैं फ़ौरन लाहौर आया हूँ। तो फिर इनके दोस्त थे जिनका मेरे साथ रब्ता रहता था, इसने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर बताया था। अक्सर पाकिस्तान आए तो हम अक्सर इकट्ठे मिलते भी थे। तो ऐसे ही फिर मैं उन स्वीडन रब्ता किया, स्वीडन वालों ने, दोस्तों ने फिर वहाँ पे रॉबरी हुई है प्रॉपर या कोई दुश्मनी वगैरह कोई मामलात बने ऐसे कुछ? भाई हमें प्रॉपर अभी किसी चीज़ का कोई नहीं, लेकिन जो उधर की लोग मकामी है, जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, वो कह रहे हैं रॉबरी हुई है, लेकिन हमें रॉबरी पर भी ये क्या वहाँ पे रॉबरी क्यों करना चाह रहे थे, क्या था इनके पास ऐसा? इनके पास लैपटॉप था, मोबाइल थी, कैश है या वॉच थी, और इसके पास क्या होना है, दौड़ तो सकता नहीं है, पाहिज था, एक लात है, पोलियो इसको हुआ था। अपाहिज थे जी, पोलियो हुआ था एक टांग पे। इंटेलिजेंट था बहुत ज़्यादा। और दूसरा हम हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करते हैं। अच्छा, वहाँ की जो पुर्तगाल की हुकूमत है उन्होंने अभी तक डेड बॉडी या कोई रब्ता नहीं किया? कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे साथ अभी तक किसी पाकिस्तानी सफारत खाना? पाकिस्तानी सफारत खाने से अभी एक मेल हमने की है, तो उन्होंने को मेल की है, उसके बाद कोई दोबारा उन्होंने कोई नहीं पूछा। कितने दिन इसको हो गए? तकरीबन आज 5 से 6 दिन हो गए हैं।